Namaste. I, Arun Vyas, welcome you once again to my YouTube channel Ninad. Today we shall talk about celebrating the Hindu New Year, or as we say, the Sanatana Dharma's New Year. First, let's have a look at the Gregorian calendar system and see how inadequate that calendar system is. And then we shall compare it with the Hindu calendar system and see how advanced it is. The Western calendar systems are inadequate and they are a calendar of convenience. They have no system to go into the history of development of the human consciousness. The Indians have always believed that the human birth is for the evolution of human consciousness. For them, history meant recording the rise and changes of the human consciousness. When they studied the movement of the celestial bodies, they corroborated that with the development or the changes in the human consciousness. That is why you have the Satyug, Treta Yuga, Dwapar Yuga and Kali Yuga. But the Western system has no such system. For them, history is a calendar is a chronicle of Ice Age, Stone Age, Iron Age, Copper Age, Bronze Age, earthquakes, calamities, wars. That is how they have noted down the history. The prehistoric period, which is noted in the Western world, is assumptive or notional because it is based on certain artifacts they found, it is based on certain rock carvings that they found, or it is based on certain discoveries which were made. So they assumed that this would have been the condition of the humans at a certain time. And therefore we see that there is a trail of inadequate calendars in the Western world. First of all, there was the Assyrian calendar, there was a Babylonian calendar, then there was a Greek calendar, and then there was a Roman calendar. And these changes were coming because they were all finding the existing calendar inadequate, so they went to create a new calendar. It also happened that even the Roman calendar was inadequate, and therefore in 46 BC, Julius Caesar made certain changes in that calendar, and that came to be known as the Julian calendar. The problem with the Julian calendar was that it miscalculated the length of the year by 11 minutes. When Christianity came and established itself and spread its wings in the world, they wanted to celebrate two events. One was the birth of Christ, and the second was the resurrection of Christ, the Easter. In the Julian calendar, the southern solstice, which is when the sun starts moving northward, fell on the 25th of December, and that date was selected to be the date of the birth of Christ. I am referring to the New Testament, and the New Testament does not give any date of the birth of Christ. For the second date, which is the Easter, they wanted to have the spring equinox as the date to celebrate Easter. The spring equinox was falling on the 21st of March, and that was selected. And why was spring equinox selected? Because that was the day when the day and night are equal. So that was taken to be the day of the resurrection of Christ. But because the Julian calendar had miscalculated the length of the year, by the 16th century, the spring equinox had shifted by 12 days. So Pope Gregory XIII decided to make certain changes in the calendar, and therefore at that time a calendar was prepared in which 4 celestial events were fixed: the spring equinox, the winter equinox, the summer solstice and the winter solstice. Easter was imposed on the spring equinox, that if it is Easter, it has to be around a day or two plus minus of spring equinox. In this process of creating this calendar, a strange sort of a calendar was produced, which is still in existence, where you have 3 months with 30 days, 7 months with 31 days, 1 month with a variable, it can be of 28 days, and after every 4 years of 29 days. We all know the story of the leap year. If a year is divisible by 4, it is a leap year. But strangely, not many of us may be aware of this. If the year is divisible by 100, of course it would be divisible by 4 also.
But if the year is divisible by 100, it is not a leap year. So the year 1700 was not a leap year, 1800 was not a leap year, 1900 was not a leap year, but 2000 was a leap year in the year 2000. Why? Because if it is divisible by 100, it will not be a leap year, but if it is divisible by 400, it becomes a leap year. That is why I say I find this a calendar of convenience. It has nothing to do with the movement of moon. It has nothing to do with the movement of Chandrama, nothing to do with the movement of Brihaspati, nothing to do with the movement of Shani, nothing to do with the change of seasons. We count a day from sunrise to sunrise. The Western calendar counts a day from midnight to midnight. भाई, how do you know midnight है? आप सो गए हैं, आपको पता नहीं है कितनी, you have no sense of time. You wake up at 2 o'clock or 2:30 at night. How do you know? तिथि बदल चुकी है. You are dependent on your watch. 31st of December, midnight, सुई का कांटा 12 से चल के 12 से बज के 1 सेकंड पे जब आता है, we start celebrating and we say that नया साल आरंभ हो गया. क्या बदला है उस समय? क्या किसी ग्रह की कोई स्थिति बदली? क्या दिन निकल आया? क्या चंद्रमा की कोई पोजीशन बदली? कुछ भी तो नहीं हुआ. तो ये जो कैलेंडर ऑफ कन्वीनियंस है, ये इसीलिए यूज हो रहा है बिकॉज इसमें सुविधा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. बट देन इट इज द सेम थिंग एज ड्राइविंग अ फेरारी और ड्राइविंग अ साइकिल. द हिंदू कैलेंडर सिस्टम ऑन द अदर हैंड इज वेरी साइंटिफिक, वेल प्लान्ड, एंड देयर हैज बीन नो चेंज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. हमारे यहाँ 5 सिद्धांत हैं ज्योतिष के. इन 5 सिद्धांतों ने जब सोलर ईयर का कैलकुलेशन किया तो सब एक नतीजे पर पहुंचे. 365 days, 6 hours, 12 minutes. The difference is in seconds. एक कहता है कि ये 30 सेकंड का, एक कहता है 36.56 seconds. इतना सा डिफरेंस है. Unlike the Western calendars where they had a year of 10 months, प्रमाण आपके सामने है. September, October, November, December. Septa, Octa, Nova, Deca. 7, 8, 9, 10. These 4 months were a part of the 10-month calendar. तो जब उसमें 2 महीने और जोड़े गए तो January and February were added, and these 7, 8, 9, 10 became 9, 10, 11, 12. But somebody forgot to change the names. This is so much for the Gregorian calendar. I am not saying at all that we stop using the Gregorian calendar. I am simply saying that we start celebrating the Hindu New Year. Our own Hindu New Year, जो सनातन धर्म का नववर्ष जब आरंभ होता है, उसको हम सेलिब्रेट करना शुरू करें. और उसके लिए 3 शब्दावलियों का समझना आवश्यक है. वर्ष, संवत, संवत्सर. वर्ष का अर्थ होता है एक सौर वर्ष. संवत is a point from where you start counting. For example, when we say AD 2022, so this is 2022 years after the birth of Christ. So for the sake of convenience, we can call it the Christ संवत. सबसे पुराना संवत जो हमारे यहाँ यूज किया जाता था उसको कहते हैं सप्तर्षि संवत. हमारे लिए सप्तर्षि पूजनीय है, हमारे लिए वशिष्ठ अरुंधति पूजनीय है, हमारे लिए सूर्य पूजनीय है, चंद्रमा पूजनीय है, समस्त नवग्रह सब पूजनीय है. सप्तर्षि का ट्रांजिट एक नक्षत्र में 100 वर्ष में होता है. सो सप्तर्षि, when it comes back to its own position, it takes 2700 years. रामायण काल में सप्तर्षि संवत मान्य था, महाभारत काल में भी सप्तर्षि संवत मान्य था. तो ये जो वेस्टर्न साइंटिस्ट, वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडियंस डिड नॉट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, डिड नॉट हैव अ सेंस ऑफ टाइम, उनको ये दिखाइए सप्तर्षि संवत. 2700 साल के साइकिल को हमने काल की गणना के लिए प्रयोग में लिया. दूसरा संवत हम जो यूज करते हैं वो है युधिष्ठिर संवत. युधिष्ठिर संवत स्टार्टेड इन 3177 BC. युधिष्ठिर संवत is approximately 5200 years old and is still being used. कश्मीर में आज भी युधिष्ठिर संवत के रेफरेंस से हिंदू पंचांग छपता है. तीसरा संवत जो सर्वाधिक प्रचलित है, the most popular one is विक्रम संवत. Started in 57 BC, which is approximately 2079 years old.
राजा विक्रमादित्य के कोरोनेशन से विक्रमी संवत आरंभ हुआ। और चौथा संवत वो है शालिवाहन शक संवत। शालिवाहन शक संवत 78 AD से आरंभ हुआ। अब हम चर्चा करेंगे संवत्सर की। संवत्सर क्या होता है? हमने देखा है कि सूर्य जब एक साइकिल पूरा करते हैं तो वो एक वर्ष कहलाता है, पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 सोलर ईयर। एक और साइकिल है जिसको भारतीय ज्योतिष गणना में लेते हैं, एंड दैट इज द मूवमेंट, दैट इज द साइकिल क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ बृहस्पति एंड शनि। बृहस्पति और शनि जब एक साथ होते हैं, 0 डिग्री पे होते हैं, उसके बाद जब परिक्रमा करके वापस 0 डिग्री पे, दोनों जब 0 डिग्री पे आते हैं, उसके बाद बृहस्पति वापस 0 डिग्री पे आते हैं, 12 वर्ष का समय लगता है। शनि जब वापस 0 डिग्री पे आते हैं तो 30 वर्ष का समय लगता है। तो 12 और 30 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो हम पाएंगे 60। 60 वर्ष का समय है जब दोनों वापस 0 डिग्री पे आकर अवस्थित होते हैं। तो ये 60 वर्ष का जो समय है, इसको संवत्सर में भाग दिया गया। ईच संवत्सर हैज बीन गिवन अ नेम। संवत्सर से काल की गणना में त्रुटि की संभावना नहीं रहती। When we say this event happened in so and so संवत्सर, we would know कि उस समय बृहस्पति की पोजीशन क्या थी, शनि की पोजीशन क्या थी, और जब काल गणना करते हैं तो हम वी फाइंड द ईयर। जैसे कोई रेलवे स्टेशन को डिफाइन करना हो, कहाँ पे है, हम कहते हैं वो दिल्ली से इतना दूर है, कैलकाटा से इतना दूर है, चेन्नई से इतना दूर है, हैदराबाद से इतना दूर है, यहाँ से इतना दूर है, वहाँ से इतना दूर है। So when we map the whole thing, we find the position of that particular railway station. Or when we give the coordinates of a place, इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, so we pinpoint. तो जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने गिन लिया, वैसे ही हमने बृहस्पति की और शनि की पोजीशन बता दी, उसका नाम दे दिया संवत्सर। इन 60 संवत्सरों का एक साइकिल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज द टेबल ऑफ द 60 संवत्सर। 1987-88 से लेके 2046-47 तक के जितने संवत्सर हैं 60 वर्षों में, वो इसमें लिखे हुए हैं। So we have seen what is a year, we have seen what is a samvat, and we have seen what is a samvatsar. We shall now see how the months are named in the Hindu calendar. They are named Chaitra, Vaishakh, Jyeshtha, Ashadh, Shravan, Bhadrapad, Ashwin, Kartik, Margshish, Paush, Magh, Falgun. How are these months named? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, वो पूरा मास उस नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। When Chandrama is transiting through Chitra, the month is called Chaitra. When Chandrama is transiting through Vishakha, it is called Vaishakh. नक्षयते यदि नक्षत्र, जिनका क्षरण नहीं होता वो नक्षत्र है। और उन नक्षत्रों में से जब पूर्णिमा पर चंद्रमा का ट्रांजिट होता है, वो पूरा मास उस नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। Unlike the name of the months in the Gregorian calendar, where the 12th month is called the 10th month, where the 11th month is called the 9th month. हमारे तो कैलेंडर के नाम भी इतने सुंदर हैं। ये तो वो नाम है, ये तो वो नक्षत्र है जिनके नाम से हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लड़कियों का नाम होता है चित्रा, विशाखा, अनुराधा। लड़कों का नाम होता है कार्तिक। फाल्गुनी इज अ कॉमन नेम फॉर गर्ल्स। ये सुंदर सिस्टम छोड़ के हम उनके कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष मनाते हैं। जाड़े की रात में ठिठुरती हुई सर्दी में जब पाला पड़ रहा होता है हिंदुस्तान के अंदर, नया वर्ष शुरू हो जाता है। अरे नया वर्ष तो ये है, उल्लास का वर्ष है। प्रकृति अपने पूरे यौवन पर है, वसंत की ऋतु है। आप देखें हाउ ब्यूटिफुली वी पिन पॉइंट अ मूवमेंट। किसी समय की किसी घटना को हम किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं इसी कैलेंडर सिस्टम से। मैं दिखाता हूं आपको। The scientific and the highly advanced Hindu calendar system has a beautiful and very accurate method of marking an event. सर्वप्रथम उस स्थान का नाम बताया जाता है जहां वो घटना हुई, so that we know the exact coordinates, the latitude and longitude of that place.
एंड देयरफॉर वी कैन डिटरमिन दी हॉराइजन, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि उस समय राशि कौन सी हो रही थी, लग्न क्या थी। टिपिकली कैसे कहते हैं, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गत ब्रह्मोत्तर के देशे पुण्य प्रदेशे। अब मैं जहाँ बैठा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है, नोएडा ग्राम है। उसके बाद मैं कहूँगा अमुक नाम संपत्ति से। उसके बाद उत्तरायण है कि दक्षिणायन है वो कहूँगा। उसके बाद में कौन सी ऋतु है वो कहूँगा। उसके बाद में कौन सा मास है वो कहूँगा। उसके बाद में चंद्रमा का कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है वो कहूँगा। तत्पश्चात तिथि कहूँगा। एंड देन आई विल अनाउंस द पोजिशन ऑफ द नवग्रह इन द ज़ोडिएक। अमुक नक्षत्र स्थितेषु सूर्य, अमुक नक्षत्र स्थितेषु चंद्रमा, अमुक नक्षत्र स्थितेषु मंगल, अमुक नक्षत्र स्थितेषु बुध। अथवा राशि डिक्लेयर करूंगा, अमुक राशि स्थितेषु सूर्य, अमुक राशि स्थितेषु चंद्रमा। नवग्रहों की पूरी सिचुएशन मैं डिक्लेयर करूंगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हेन वाज गैलीलियो बोर्न, और यदि मैं आपसे पूछूं कि क्राइस्ट से पहले की यदि कोई नाम है तो व्हेन वाज सो एंड सो बोर्न। यदि मैं आपसे पूछूं व्हेन वाज नोआह बोर्न, व्हेन वाज अब्राहम बोर्न, can we pinpoint the date and time? I don't know. But if I tell you when Shri Ram was born, pinpointed time. वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म का समय उल्लेख है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न, लग्न में चंद्रमा, लग्न में बृहस्पति, 5 ग्रह उच्च के। ततश्च द्वादशे मासे चैत्र नवमिको तिथौ, चैत्र मास की नवमी तिथि। नक्षत्रे अदिति दैवत्य, अदिति के आधिपत्य वाला नक्षत्र। पुनर्वसु, सूर्य संस्थेषु पंचसु, 5 ग्रह अपने अपने उच्च के स्थान पर थे। सूर्य मेष राशि में, मंगल मकर राशि में, शनि तुला राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र मीन राशि में। कर्क लग्न में वाक्पति बिंदुना सह, कर्क लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा। दैट इट इज 10th जनवरी 5114 BC। इस प्रकार से वी हैव दिस ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ फिगरिंग आउट। सिमिलरली युधिष्ठिर का राज तिलक का हुआ 3177 BC। इसी प्रकार से हमको मालूम पड़ा, इसी प्रकार से मालूम पड़ता है कि महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ 13 अक्टूबर 3139 BC। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कलयुग कब आरंभ हुआ, 3102 BC। तो इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो हमारे पास में है, इतना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इतना एक्यूरेट है, उसको छोड़ के हम कहाँ पड़े हैं उन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाने के लिए। आइए देखें हाउ डू वी सेलिब्रेट द न्यू ईयर। अब न्यू ईयर सेलिब्रेट होता कब है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। भारतीय पंचांग के हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष आरंभ होता है। क्या हुआ था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को? सतयुग का आरंभ हुआ था। सारे ग्रह 0 डिग्री पे थे और वहां से उनका आरंभ हुआ। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सतयुग। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को श्री राम का राज तिलक हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था। युधिष्ठिर संवत्सर आरंभ हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रमी संवत आरंभ हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आर्य समाज की स्थापना हुई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। हिंदू नववर्ष कैसे मनाएं? सुबह से तो आरंभ करिए। सबसे पहला काम करिए, यदि संभव हो अपने मित्रों के साथ एक प्रभात फेरी निकालिए। अपने गली में, मोहल्ले में, अपने नगर में, ग्राम में, जहाँ भी है, प्रभात फेरी निकालिए। प्रभात फेरी एक बहुत पुराना, एक बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ। भोर में कीर्तन करते हुए नगर का भ्रमण करना, प्रभात फेरी। यदि संभव हो, गो एंड हैव अ बाथ इन अ होली रिवर और अ होली टैंक। आप गंगा स्नान कर सकते हैं, यमुना स्नान यदि कर सकते हैं, गोदावरी स्नान करें, किसी भी पवित्र नदी का स्नान यदि संभव हो तो करें। और घर में तुलसी का पौधा लाएं सुबह। मौसम बदल रहा है, सो यू नीड टू बूस्ट द इम्यूनिटी। मिश्री और नीम के पत्ते का सेवन करें। उसके बाद अपने घर में वंदन बाण लगाएं।
decorate the main door with flowers and decorations. एक ध्वज यदि संभव हो तो उसे लगाएं, saffron flag with the swastika marked on that, संभव हो तो छत पे जाके लगाएं. वही है गुड़ी पड़वा. पड़वा मतलब प्रथमा, प्रथमा के दिन झंडा लगा गुड़ी. उसके बाद अपने घर में पूजन करें इष्ट देवता का. अपने घर में जितने भी आपके जो कुल देवता है, इष्ट देवता है, उनका पूजन करें. Pray for prosperity, pray for happiness, pray for good health, pray for respect, मान सम्मान, pray for arise in the consciousness. बड़ों का आशीर्वाद लें. संभव हो सके तो प्रातः काल का अग्निहोत्र आरंभ करें. This can be the beginning of starting to do अग्निहोत्र on a regular basis in the house. सुबह बीत जाने के बाद दिन में अपने मित्रों के साथ में you can exchange pleasantries, send physically do it, you can do it online, you can do it through the social platform, whatever. In the evening you light up your house. In the evening you can light up your establishment, you can light up your shop, you can light up your office. संध्या समय at the time of sunset, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, एक धूना लेके पूरे घर में घूमें and sanctify the house. You can even start an evening Agnihotra on a regular basis. शाम के समय की ये आरती यदि आप नित्य करेंगे तो उसका फल आपको शीघ्र ही मालूम पड़ना. You will realize what benefits you are getting. One promise you must make to yourself on this new year is start reading some good scripture on a regular basis. Any book. It can be Sri Aurobindo's essays on the Gita, it can be his letters on yoga, it can be the autobiography, it can be the biography of Sri Ramakrishna Paramhans, it can be the writings of the mother, it can be the writings of Swami Vivekananda, kuch bhi. Every day for 25 minutes, 30 minutes, start reading some good literature. हम दिन भर दुनिया भर की बातें करते हैं, काम करते हैं, आधे घंटे के लिए एक अच्छा इनपुट हमारे भीतर जाए, ये संकल्प हम नववर्ष में करें. एंड दिस इज हाउ इट इज. अब मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम देता हूँ. आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं. ये वीडियो पसंद आया तो औरों के साथ शेयर करें. लेट पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिंदू न्यू ईयर. स्प्रेड दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन. Subscribe to my channel. Press the bell icon so that whenever I load a new video, you get the notification. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.